Hello student, welcome to the Gyan Manji Vidyapit online education. I Abhay Vyas is today going to resume our computer syllabus with chapter number 3. The new point we are going to discuss today, that is image as a hotspot. Right? Mostly I think you have heard the particular term, that is hotspot. Right? Mostly in a computer technology, if we discuss about the hotspot, then there is a particular spot where you can click and it will give you the new page or new particular link to you. Right? Once you click on the particular portion of your page, at that time it will provide you the new web page or new link. Suppose if you are using Google Map, so Google Map is having a particular hotspot. Like if you search a particular place, so you can see that there is one particular spot. The specific round spot are there. You can click on that round spot, it will zoom in and you can see the particular place in detail over there. So that kind of technology which is known as hotspot. So right now we are going to make hotspot as a image. हम जो है ना वो फोटो को एक हॉटस्पॉट देंगे, फोटो के ऊपर आप क्लिक कर सको, वैसे हम एक पर्टिकुलर कोड बनाएंगे. But before we discuss this thing, I would like to again revise you one example to you, that link, that is hyperlink. क्योंकि एक बार आपको hyperlink का concept अगर clear हो गया, then it is easy for you to make a image as a hotspot. So now I'm going to create one simple code, that is HTML contains the head tag over here, which contains title tag, जहाँ पर हम एक नॉर्मल टाइटल देते हैं. लाइक आई एम गोइंग टू गिव द टाइटल एज हाइपर लिंक. राइट, एक हाइपर लिंक का ही हम एग्जाम्पल अभी देखेंगे. देन वी हैव टू क्लोज हेड टैग ओवर हियर. देन वील हैव टू स्टार्ट बॉडी टैग, एंड इनसाइड द बॉडी टैग हम जो है ना वो हाइपर लिंक अभी ऐड करेंगे. तो यहाँ पर जो एक मैं कॉमन एक टाइटल दे देता हूँ, इन H2 टैग हाइपर लिंक एग्जाम्पल. दिस इज माई सिंपल हाइपर लिंक एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट राइट नाउ. H2. Then here I would like to add a hyperlink. मुझे यहाँ पर एक hyperlink ऐड करना है. So I have to use over here specific text like a click here. Right? एक यहाँ पर मैं text लिखता हूँ, that is click here. Click here text जो है वो link में मुझे create करना है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर anchor tag ले लूँगा और उसका href एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर डबल कोटेशन में मैं कोई एक नया कोड जो है, नया पेज जो है उसका एड्रेस दे दूंगा. सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ एड्रेस न्यू पेज डॉट HTML एंड आई क्लोज दिस ब्रैकेट. अभी ये क्लिक हियर टेक्स्ट यहाँ पर एज इट इज रहेगा. उसके बाद एट लास्ट आई हैव टू क्लोज दिस एंकर टैग, दैट इज A. So as you all know that anchor tag, A tag is used to create the hyperlink. Within this A tag you will have to write down any textual content, right? And A tag is having one attribute, that is href, and href attribute contains a new HTML page, new HTML path, right? New HTML code, जो भी आपने नया HTML का वेब पेज बनाया है उसका पाथ आपको यहाँ पर जो है वो देना होगा. तो मैं यहाँ पर न्यू पेज डॉट HTML कर एक पाथ जो है वो कॉमनली देता हूँ. देन आई विल हैव टू close this body tag. At last I'll have to close this HTML tag. This is my simple HTML code, right? अभी जैसे ही क्लिक हियर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए आउटपुट में, न्यू पेज डॉट HTML कर जो HTML का एक पेज होगा वो वेब पेज ओपन हो जाना चाहिए. सो हमें अभी नेक्स्ट थिंग जो है वो करनी है क्या, तो हमें जो है वो न्यू पेज डॉट HTML कर एक नया कोड जो है वो प्रिपेयर करना होगा, नया HTML का एक फाइल बनानी होगी. राइट, पहले हम इसे सेव करते हैं. आई एम गोइंग टू सेव दिस फाइल into this HTML folder, and here I'm going to give the file name as
hyperlink.html, राइट, hyperlink.html कर इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। अभी नई फाइल बनानी होगी जिसका नाम जो है वो newpage.html मुझे देना होगा, राइट। सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस होल कोड। आई एम यूजिंग Ctrl+N, जैसे Ctrl+N या तो मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये नई फाइल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर मैं कोड को पेस्ट करूंगा और यहाँ पर जो है ना इस कोड में थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा। यहाँ पर इसका टाइटल दे दूंगा न्यू वेब पेज, राइट, टाइटल आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, एंड यहाँ पर यू हैव क्लिक्ड लिंक, सिंपल, ये चीज़ यहाँ से निकल जाएगी। ये जो है वो क्या होगा, मेरा नया पेज जिसका नाम क्या होगा, newpage.html इसका नाम होगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस लाइन को जो है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, राइट। अभी कॉमन चीज़ है, इसे मैं यहाँ से सेव करता हूँ। इसका नाम जो है वो क्या रहेगा, मैंने कॉपी किया वो newpage.html, सेव। अगर ऐसी कोई फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो अभी उसे हम रिप्लेस कर देते हैं। सो यस, सो नाउ अभी पहले मैं आपको कोड समझाता हूँ, उसके बाद जो है ना हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी जो है वो कोड यहाँ पर अवेलेबल है। इस कोड में क्या किया हमने, न्यू वेब पेज करके टाइटल दिया, H2 के अंदर यू हैव क्लिक्ड लिंक कर एक टेक्स्ट लिखी। उसका मतलब ये कि जब भी लिंक के ऊपर क्लिक हुई उसके बाद ये वेब पेज जो है ना वो आउटपुट में आपको दिखेगा। पहले जो है वो क्या होगा, ओपन में जाकर हम पहला कोड ओपन करवाते हैं जिसका नाम था हाइपरलिंक, राइट, दिस वन। पहले ये कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। इस कोड के अंदर क्या आएगा, टाइटल में हाइपरलिंक आएगा, H2 में हाइपरलिंक एग्जाम्पल, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा, एग्जाम्पल, राइट। देन क्लिक हियर जो है वो एंकर टैग में है, मतलब ये टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल नहीं है, ये टेक्स्ट क्या बन गई है, हाइपरलिंक बन गई है। लिंक का मतलब इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो, राइट। क्यों क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने एंकर टैग यूज किया है, ए टैग। यहाँ पर हमने इसका एक एट्रीब्यूट लिया है, दैट इज href इज इक्वल टू newpage.html, राइट। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो newpage.html कर एक वेब पेज होगा, वो वेब पेज ओपन होगा और उसके अंदर जो है वो हमने क्या लिखा है, तो वो हम देखने के लिए वी हैव टू ओपन दैट पर्टिकुलर फाइल newpage.html, और उसके अंदर हमने टाइटल में न्यू वेब पेज लिखा है एंड यू हैव क्लिक्ड लिंक, राइट, आपने लिंक को क्लिक कर दिया है, ऐसा एक मैसेज हमने लिखा है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द हाइपरलिंक। अभी इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। टू एग्जीक्यूट द फाइल यू हैव टू डायरेक्टली गो टू दैट पर्टिकुलर directory where you have saved the file. So this is our file hyperlink.html. I have to right click over here, I have to click on the open with, and I'll have to click the Google Chrome browser. So you can see the particular title is set over here, hyperlink example, and click here. Once you click on the link, it will change the new page. यहाँ पर देखो नया पेज आ गया newpage.html, इसका टाइटल आ गया न्यू वेब पेज and you have clicked the link, right? This is the process of hyperlink, जो हमने ऐसे एग्जाम से पहले, दिवाली पहले जो हमने हाइपरलिंक का कंसेप्ट देखा था वो मैंने अभी रिवाइज किया। Why I have revised this particular concept? Because we have to create the image as a hotspot. हमें जो है वो क्या करना है, इमेज को एज अ हॉटस्पॉट क्रिएट करना है। दैट्स वाई आई हैव रिवाइज दिस थिंग, क्योंकि इमेज हॉटस्पॉट तभी क्रिएट होगा जब आप इमेज के ऊपर क्लिक कर पाओगे, और क्लिक करने के लिए इमेज को आपको एज अ हाइपरलिंक ट्रीट करना होगा, राइट। तो अभी मैं अगेन जो है ना वो एक पर्टिकुलर कोड प्रिपेयर करता हूँ जिसके अंदर हम इमेज एज अ हाइपरलिंक प्रिपेयर करेंगे, इमेज को हॉटस्पॉट प्रिपेयर करेंगे, राइट। So I'm going to create a new code, HTML
Then I'm going to take head tag over here, then title tag, और इस डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो image as hotspot. Then close the title and close the head tag. Then you will have to start the body tag, and within the body you will have to define the image as a hotspot mechanism. तो यहाँ पर जो है ना पहले हम हेडिंग दे देते हैं H1 में इमेज एज हॉटस्पॉट, राइट। ऐसा एक हमने यहाँ पर H1 के अंदर हेडिंग जो है वो हम टाइप करते हैं। और अभी एक्चुअली हमारा कोड स्टार्ट होगा, राइट। कोड स्टार्ट करने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने img टैग के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज इमेज टैग। तो सेम टैग हम यहाँ पर लेते हैं img टैग, राइट। इमेज टैग के अंदर जो है ना वो हमने इसका एक एट्रीब्यूट देखा था जिससे कि आप इमेज जो है ना वो ले सको। सो एट्रीब्यूट का नाम क्या था, src, दैट इज सोर्स, देन इज इक्वल टू, एंड डबल कोटेशन में आपको जो है ना वो इमेज का नेम जो है वो यहाँ पर आपको देना होता है, राइट। सो यू विल हैव टू गिव द इमेज नेम ओवर हियर। इमेज नेम जो है वो आप क्या दोगे और कैसे दोगे, यहाँ पर पाथ कैसे लिखोगे, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली इमेज का नेम लिखना है और डॉट उसका एक्सटेंशन लिखना है। इमेज जो है वो कौन सी टाइप की है, जेपीजी है, जीआईएफ है, पीएनजी है, कौन सी टाइप की इमेज है, तो उसके बारे में जो है ना आपको यहाँ पर जो है वो ऐड करना होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक वन इमेज. So to add image here, we'll have to give the name of image over here, right? तो उसके लिए पहले तो जो है ना वो जिस डायरेक्टरी में हमने ये फाइल सेव की है, तो हमने फाइल यहाँ पर HTML सी ड्राइव के अंदर HTML फोल्डर के अंदर सेव की है। तो यहाँ पर ऑलरेडी दो इमेज तो है ही, एक डेजर्ट वाली है और एक जो है वो लाइट हाउस वाली है, राइट। सो नॉर्मली हम क्या करेंगे, ये इमेज जो है उसका नेम को नॉर्मली हम कॉपी कर लेंगे, या तो आप डायरेक्टली इसके नेम को यहाँ वहाँ पर लिख सकते हो। So I'm going to copy this name. You will have to make sure that whatever the image you would like to add over there, you will have to copy that image on the same path where you have saved the file. जहाँ पर आपने फाइल सेव की है वहाँ पर आपको इमेज को कॉपी कर लेना है, राइट। उसके बाद जो है वो सिंपली यहाँ पर इमेज का नेम देना है। सो यू विल गेट द इमेज एज एन आउटपुट। और यहाँ पर हम इसके दो एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, दैट इज हाइट इज इक्वल टू, suppose I am giving the value over here, that is 300 pixel, this is a pixel, right? Width is equal to again 300, height and width I am going to give equal. So एक इमेज यहाँ पर ऐड हो गई और यहाँ पर जो है ना मैं बॉडी को अभी पहले क्लोज करता हूँ, बॉडी इज क्लोज एंड HTML is I am going to close over here. अभी पहले तो हम देखते हैं कि इमेज हमारी आउटपुट में आती है कि नहीं आती, राइट। सो आई एम गोइंग टू सेव दिस कोड. आई एम गोइंग टू गिव द नेम एज image hotspot.html, राइट। ऐसा एक मैं नेम देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ. सो दिस इज अवर सिंपल कोड img टैग जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, वही सेम कोड यहाँ पर ऐड किया है. अभी इमेज हॉटस्पॉट नहीं बना है, अभी सिर्फ हमने टेस्ट करने के लिए इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ये कोड रन होता है कि नहीं होता. क्योंकि आप जो है ना अभी लर्निंग फेज में हो, तो आपको पहले तो ये टेस्ट कर लेना चाहिए कि इमेज यहाँ पर आती है कि नहीं आती है. तो कई बार कोड के अंदर टाइप करने में कोई मिस्टेक आती है तो इमेज आप जो है वो नहीं देख पाते. सो यस, अवर कोड इज रन एग्जीक्यूटेड परफेक्टली. सो नाउ वी कैन ऐड हॉटस्पॉट ओवर हियर. हम जो है ना अभी यहाँ पर हॉटस्पॉट दे सकते हैं. अभी इमेज को हॉटस्पॉट देने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पूरी img टैग जो है ना, पहले हम एंकर टैग में क्या करते थे, किसी भी टेक्स्ट को जैसे कि क्लिक हियर बीच में लिखते थे और एंकर टैग पहले स्टार्ट करते थे और आफ्टर उसको क्लोज करते थे. तो अभी ये पूरी img टैग को हम एंकर टैग के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट करेंगे, राइट. एंकर टैग जो है वो पूरी img टैग को कवर करेगी.
जैसे कि यहाँ पर जो है वो मैं क्या करता हूँ, एंकर टैग अभी ऐड करता हूँ, ए टैग, देन आई एम गोइंग टू ऐड ओवर हियर href इज इक्वल टू इनटू द डबल कोड। यहाँ पर क्या आएगा, जब भी मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँ, नॉर्मली आप देखो यहाँ पर आप क्लिक नहीं कर पाओगे, ये इमेज जो है ना वो ऐसे नॉर्मली यहाँ पर रहेगी, यहाँ पर आप क्लिक नहीं कर पाओगे। बट हमें क्या करना है, इमेज एज ए हॉटस्पॉट, मतलब इमेज के ऊपर क्लिक कर सके और नया वेब पेज यहाँ पर जो है ना वो खुल जाए, वैसा कुछ टास्क परफॉर्म करना है, उसे इमेज एज ए हॉटस्पॉट कहते हैं। तो अभी इस इमेज के ऊपर क्लिक कर सके वैसी इमेज हमें क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एंकर टैग यहाँ पर शुरू करनी होगी और एंकर टैग को आखिर में ख़त्म करनी होगी। तो पहले एंकर टैग के href में मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ info.html, मतलब information.html कर एक मैं फाइल बनाऊंगा, उसे मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। और लास्ट में मुझे क्या करना होगा, एंकर टैग को ऐसे क्लोज करना होगा। दिस इज माई एंकर टैग। नाउ सी द थिंग्स, यहाँ पर एंकर टैग शुरू की, ये नॉर्मली क्या हुई, एंकर टैग शुरू हुई जिसके अंदर href इज इक्वल टू info.html मैंने लिखा, और एट लास्ट मैंने यहाँ पर एंकर टैग कंप्लीट की, और बीच में हमने क्या किया, पूरी इमेज टैग को ऐड किया। जिस जगह हम पहले क्या लिखते थे हाइपर लिंक में, क्लिक हियर, इतना ही लिखते थे ना नॉर्मली, तो यहाँ पर हमने img पूरी टैग को जो है वो बीच में हमने ऐड किया, राइट। तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज इमेज एज अ हॉटस्पॉट, राइट। अभी हमने यहाँ पर एक नई फाइल ऐड की है कि जब भी मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो क्या हो, तो info.html कर एक फाइल होगी, वो ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये फाइल क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं इस कोड को सेव करता हूँ यहाँ पर, राइट। और अभी आउटपुट के अंदर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं कि इमेज जैसा हॉटस्पॉट हो गया कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फिंगर जैसा एक सिंबल आ गया, पहले यहाँ पर नहीं आता था। जब भी ऐसा फिंगर जैसा सिंबल आ जाए, मतलब यू हैव क्रिएटेड सक्सेसफुली इमेज एज अ हॉटस्पॉट। Now you can click on the image and it will open a new file info.html। अभी फाइल ओपन नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमने info.html कर कोई फाइल अभी बनाई ही नहीं, हमने सिर्फ यहाँ पर नेम ही दिया है। उस फाइल को अगर आपको क्रिएट करना है तो मैं अभी शॉर्टकटली इस कोड को कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल यहाँ पर ऐड करता हूँ, राइट। और यहाँ पर जो है इसका थोड़ा नेम चेंज करता हूँ भाई, इंफॉर्मेशन, ऐसा यहाँ पर मैं नॉर्मली लिखता हूँ भाई, ये जो भी इमेज है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। और यहाँ पर उसका हेडिंग चेंज करता हूँ, इमेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट। और यहाँ पर जो है ना इसका कोड थोड़ा रिमूव करता हूँ, और अभी एक बार हम देख लेते हैं कौन सी इमेज है, तो उसके रिलेटेड 2-3 लाइन यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये इमेज कुछ डेजर्ट जैसी हमें दिख रही है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर, यू कैन सी डेजर्ट इन इमेज, राइट। इतनी एक ही लाइन हम अभी डेमो के तौर पर ऐड करते हैं। इस कोड को मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर नाम कौन सा देंगे, info.html, राइट। जो नेम हमने इमेज एज हॉटस्पॉट फाइल में दिया वही नेम यहाँ पर देंगे, info.html, रेडी। इसे सेव करते हैं। क्या होगा, जब भी इमेज के ऊपर क्लिक होगा तो ये वेब पेज लोड होगा, टाइटल में इंफॉर्मेशन आएगा, h1 टैग में इमेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐसा प्रिंट हुआ आएगा, और यू कैन सी डेजर्ट इन इमेज, ऐसी एक पर्टिकुलर लाइन जो है वो आउटपुट में आपको दिखेगी। ओके, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। वंस आई क्लिक ओवर हियर यू कैन सी द आउटपुट इमेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन। समझ में आया? दिस इज द इमेज एज अ हॉटस्पॉट, बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इमेज एज अ हॉटस्पॉट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं क्लिक कर सकूंगा और info.html कर फाइल यहाँ पर आ गई, दूसरा पेज आ गया, इमेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रिंट हुआ और यू कैन सी डेजर्ट इन इमेज। तो इसके लिए हमें 2 फाइल बनानी होगी, एक तो info.html के जहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो ये फाइल ओपन हो जाए, और हमारी मेन फाइल जो थी उसका नाम क्या था, इमेज हॉटस्पॉट, दिस वन,
जब भी मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो info.html कर जो फाइल हमने बनाई है दूसरी, वो फाइल ओपन हो जाती है. सो दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट विच इज नॉन एज इमेज एज अ हॉटस्पॉट. अभी मैंने यहाँ पर कोड के अंदर एक ही इमेज एज अ हॉटस्पॉट बनाई है. आप मल्टीपल इमेज एज अ हॉटस्पॉट भी बना सकते हो. राइट, सपोज यहाँ पर इस कोड को ही मैं कॉपी करता हूँ. कॉपी, एक दूसरी इमेज को एज अ हॉटस्पॉट यहाँ पर क्रिएट करते हैं. इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर. ओके, यहाँ पर desert.jpg जो फोटो आ रहा है उसके जगह हम दूसरा फोटो लाते हैं जो यहाँ पर एक इमेज ऑलरेडी है ही, lighthouse.jpg. तो इस पूरे नेम को सिलेक्ट कर कॉपी कर lighthouse.jpg यहाँ पर ऐड कर देते हैं. राइट, अभी info.html जो है वहाँ पर info2.html कर एक फाइल यहाँ पर लोड करवाते हैं. इसके ऊपर सेव करते हैं इस कोड को और इससे यहाँ पर आउटपुट में रिफ्रेश करते हैं. तो आप यहाँ पर दूसरी में भी देख सकोगे. राइट, इसके ऊपर क्लिक करो ना तो आपको info2.html फाइल नहीं मिलेगी क्योंकि वो हमने अभी तक क्रिएट की ही नहीं है. राइट, सो सेम थिंग आप क्या करोगे, ओपन में जाओगे, इन्फो वाली जो फाइल है उसे कॉपी करोगे. इस फाइल को, पूरे डेटा को कॉपी कर नई फाइल लोगे, कंट्रोल एन प्रेस कर इसे सेव करोगे और यहाँ पर information2 फाइल, इमेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर यू कैन सी लाइट हाउस इन इमेज. राइट, इसे सेव करते हैं. क्या नाम देंगे यहाँ पर, info2.html. राइट, क्योंकि हमने href में info2.html दिया था. राइट, तो ये info2.html यहाँ पर हो गया. ओरिजिनल फाइल में आ जाते हैं. इमेज हॉटस्पॉट, राइट, दूसरी इमेज है. इसको फिर से रिफ्रेश करवाते हैं. You can see once you click over here, you can see the info2.html over here. You can see lighthouse in image, right? Once you click over here, desert image, right? तो ऐसे आप जो है ना इमेज एज अ हॉटस्पॉट क्रिएट कर सकते हो. जिस भी इमेज के ऊपर क्लिक करोगे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आप दूसरे वेब पेज के अंदर आप बना सकते हो. आप देखोगे तो एक यहाँ पर कितनी फाइल टोटल क्रिएट हुई. एक तो हमारी मेन फाइल, हमारी इंडेक्स मेन फाइल जो है वो है इमेज hotspot.html, वो ये वाली. राइट, उसके बाद दो सब फाइल हमने बनाई. जब भी आप क्लिक करोगे पहली इमेज पर तो info.html फाइल लोड होगी. दूसरी इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो info2.html वाली फाइल लोड होगी. तो ऐसे जो है वो इमेज हॉटस्पॉट के तौर पर वर्क करता है. राइट, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली इमेज एज अ हॉटस्पॉट आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में लर्न किया. इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल मीट, एट दैट टाइम वी विल क्रिएट वन गूगल मैप. गूगल मैप के अंदर जो बेसिकली पूरी एप्लीकेशन तो हम नहीं बना पाएंगे यहाँ पर, बट गूगल मैप कैसे वर्क करता है कि इमेज के पोर्शन के ऊपर आप क्लिक कर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ओपन करवा सकते हो. उसके बारे में एक हम कोड यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे. आपको फील ऐसा ही होगा कि आप गूगल मैप के अंदर वर्क कर रहे हो, बट एक्चुअली वो गूगल मैप नहीं होगा. सो दैट काइंड ऑफ एग्जांपल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं.